Welcome to Ayurvedic Pathshala. If you like the videos, hit like and subscribe and keep watching. Hello students, how are you all? I, Dr. Shiksha, have already discussed with you about Navjat Shishu Ahar Part 2 Ayurvedic aspect. Today we are going to discuss the modern aspect of that particular topic in this neonatal feeding portion of Part 2. And under this topic, we are going to discuss the technique of proper breastfeeding and what are the other feeding techniques that we are using in modern science to feed the baby. So the basic feeding technique, breastfeeding technique for a mother which we have to advise includes 4 steps. First is positioning, second is attachment of the baby, third is warping, and fourth is adequacy. And in positioning, it defines as the different positions in which a mother can hold a baby to feed it properly. And the most common methods or most common positioning techniques which are used, one is traditional cradle position, second is cross cradle hold, third is football or clutch hold, and fourth is lying hold. Other feeding positions are also there as per the comfort of the mother and the baby. Here this picture is showing the traditional cradle position, like we commonly see a mother is feeding a baby and has put the baby to her breast, keeping her head on the same side of elbow, right? So here you can see this is traditional cradle position. Here is the picture which is showing cross cradle position. As you can see, mother is holding the head of the baby with the other opposite side of the breast from which she is feeding and holding the breast with the same side of hand, right? This is cross cradle position, and feeding the baby while lying is the lying position, and very different position, that is football or clutch position. Here we hold the baby like we hold a clutch purse, right? So here the mother is holding the baby to the from the same side of the breast from which she is feeding, right? You can see this is football or clutch hold, and this hold is done basically for twin babies so that we can feed twin babies at the same time. Then is attachment. First, you should know in which position you have to feed the baby. Either you have to take it in traditional position, that is cradle position, or you have to feed in the lying position, right? You choose the proper position as per your need. Then very important thing, that is attachment of the baby, right? अब जब भी मदर जो है बच्चे को फीड करवाती है, तो फीडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज फॉर अ मदर, राइट? फीडिंग इजी नहीं होती, एंड स्पेशली फॉर द प्राइमी मदर्स, जो कि मदर्स पहली बार माँ बनती हैं, उनके लिए फीडिंग इज अ वेरी टफ जॉब. उनको या फिर ऐसी मदर जिनमें ऑलरेडी प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आई है या जिनके रिट्रैक्टेड निपल्स रहते हैं, उन मदर्स को प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कि फीड कैसे कराया जाए. तो पहले उन्हें हम पोजीशन समझाते हैं और मदर को ये भी समझाते हैं दैट शी शुड हैव अ प्रॉपर सपोर्ट, ताकि वो थके ना. बैक सपोर्ट होनी चाहिए. अगर वो बैठ के पिला रही है तो लाई डाउन है देन इट इज ओके, बट अगर वो बैठ के पिला रही है, क्रेडल पोजीशन में है, क्रॉस क्रेडल में है, चाहे किसी में भी है, बट if she is sitting, then she should have a back support either by pillows or something else. And while feeding the baby, make sure that baby is wrapped properly, right? ऐसा ना कि बेबी गिर रहा है. Second, baby's front side, that is chest and abdomen, should be naked हो, ताकि वो मदर की बॉडी के साथ अटैच हो सके, एक प्रॉपर कनेक्शन बने मदर की बॉडी में और बेबी की बॉडी में. एंड सेकेंड, थर्ड थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, दैट बेबीज हेड एंड बॉडी शुड बी इन लाइन. जब भी बच्चे को मदर एल्बो पे लेती है, राइट, तो जो उसका बॉडी है दैट शुड बी इन लाइन, राइट? ऐसा नहीं है कि नेक उसकी बिल्कुल बेंड हो चुकी है बिल्कुल और उसको प्रॉब्लम आए फीडिंग में. एंड वन मोर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट बेबी शुड बी इंक्लाइंड एटलीस्ट. बिल्कुल फ्लैट पोजिशन में उसको ब्रेस्ट फीड नहीं देना है. हेड शुड बी हेल्ड हाई विद द हैंड.
तो इस तरह से हम करते हैं। और थर्ड थिंग कि जो बेबी का नोज है दैट शुड बी एट द लेवल ऑफ निपल्स, और ये भी ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट से बेबी का नोज जो है वो प्रेस ना हो ताकि उसे फीडिंग में प्रॉब्लम ना आए। देन अटैचमेंट में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वन इज रूटिंग, सेकंड इज लैचिंग एंड थर्ड इज सक्लिंग। रूटिंग क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट पिक्चर में यू कैन सी that person is touching the corner of the mouth, right? corner of the mouth को टच कर रहा है, तो जिस तरफ में भी वो टच करता है बेबी उसी तरफ का अपना माउथ जो है वो टर्न कर लेता है, right? in the search of nipple because baby is hungry. so this is rooting reflex. आपने एक stimulus दिया at the corner of the mouth और baby is turning head towards that stimulus, that is rooting. and second is latching. a proper latch is very important, right? एंड प्रॉपर रूटिंग रिफ्लेक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब बच्चा रूटिंग करता है तब वो अपने माउथ को ओपन करता है, तो रूटिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड लैचिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो वी हैव टू अलाउ द बेबी टू हैव अ वाइड ओपन माउथ. Mouth should be wide open and should be quickly brought to the breast so that baby takes the nipple into the mouth, and ensure that most of the nipple and most of the areola is inside the baby mouth. This we have to see. So in this second picture, as you can see, baby's mouth is wide open and most of the areola and the nipple is inside the mouth of the baby. This is the correct latch. अगर correct latch ना हो, then it can lead to cracking of the nipples and even pain or soreness of the nipples. तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जो माउथ है वो कम्प्लीटली एरियोला को कवर करे और लिप्स जो है वो प्रॉपरली फैंग्ड आउट हो, इवर्टेड हो बाहर की तरफ को, ताकि बच्चा जो है वो प्रॉपर सक कर सके. देन इज सकलिंग. एक प्रॉपर सकलिंग रिफ्लेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बेबीज माउथ इज वाइड ओपन, ये देखना है. मोस्ट ऑफ द एरियोला इज इन द माउथ. बेबीज चिन टचेस द ब्रेस्ट एंड बेबीज लोअर लिप इज इवर्टेड. इन चीजों का ध्यान रखना है. देन इज वर्पिंग. व्हाट इज वर्पिंग? इसमें क्या करते हैं, बच्चे को जैसे बेबी फीड कर लेता है उसकी जो बैक है उसको रब किया जाता है. उसको हम अपहेल्ड करते हैं टू द शोल्डर लाइक इन दिस पिक्चर, और बैक को रब करते हैं टू द अपवर्ड साइड, और वी कैन इवन टैप द बैक अंटिल बेबी वर्ब्स. तब तक करते हैं सो दैट जितना भी उसने एयर ऑफ एजिया किया है, जितनी भी एयर एनगल्फ की है ड्यूरिंग फीडिंग, वो एयर वो एक्सपेल आउट हो जाए. Then is adequacy of the feed is important. You should know how much feed has to be given. So it is recommended that up to 1 month 50 to 75 ml of feed is required per feed. This is per feed, and we can give 6 to 8 feeds a day. For 1 to 2 months 75 to 100 ml per feed, and 6 to 8 feeds are recommended per day, that is 24 hours, right? Day means 24 hours here, right? And in 2 to 4 months 100 to 125 ml 5 to 6 times a day. 4 to 6 months में 150 to 175 ml per feed is to be given, and 5 to 6 times the feed has to be given. And beyond 6 months we also start giving food to the baby. Weaning starts, right? Weaning start हो जाती है after 6 months. तो बच्चे को हम खाना देना भी शुरू कर देते हैं. We will discuss about weaning in our coming lectures. सो वीनिंग करना शुरू कर देते हैं. तो उस टाइम जो फीड है 175 to 200 ml, और टाइम्स ऑफ फीड वो रिड्यूस हो जाते हैं बिकॉज बीच में मील्स भी जाते हैं 4 to 5 times a day. अब मदर कैसे पता लगाएगी दैट यस बेबी इज टेकिंग प्रॉपर फीड? तो उसके लिए ये है कि बेबी शुड पास यूरिन 6 to 7 times a day. Stool should be formed properly. Baby sleeping, a comfort sleep is there for a baby for 2 to 3 hours. He is sleeping well, and even weight gain is proper. Adequate weight gain is there. Then it means that breastfeed is adequate. तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है. Then is breastfeeding करवानी कब होती है? According to this science, modern science, it is said that we have to put baby within half hour of birth to the breastfeed. इसके लिए स्पेशली क्या है, and or when the mother is comfortable, right? और if in C-section it is advised कि हम 4 घंटे के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड के लिए दे दें, क्योंकि उसके बाद ही मदर जो है वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट के बाद कंफर्टेबल पोजीशन में आती है जिससे वो फीड करवा सकती है. और टिल देन यू कैन गो विथ टॉप फीड्स, राइट? देन व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ फीडिंग? अब जितने भी मेथड्स ऑफ फीडिंग है दे डिपेंड अपॉन द जेस्टेशनल एज ऑफ द बेबी, कि बच्चे की
जेस्टेशनल एज कितनी है, किस टाइम प्री मैच्योर है, मैच्योर है, पोस्ट मैच्योर है, राइट, और बर्थ वेट कितना है, इन दोनों पे डिपेंड करता है फीडिंग मेथड। अगर बच्चे की जेस्टेशनल एज जो है दैट इज लेस देन 30 वीक्स, that is very premature baby, and birth weight is also less than 1200 grams, then we go for IV infusions. तब हम IV infusion देते हैं, that is parenteral nutrition पे जाते हैं। जो IV infusion होती है उसको बोलते हैं हम parenteral न्यूट्रिशन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, इसमें क्या करते हैं, कैनुला लगा देते हैं और कैनुला के साथ फ्लूइड लगा देते हैं, जो भी बच्चे को रिक्वायर्ड होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उसका फ्लूइड लगा देते हैं। तो जो जस्ट आफ्टर बर्थ जो है हम क्या लगाते हैं, D10 देते हैं if the weight of the baby is more than 1000 grams for 3 to 4 days, हम D10 लगाते हैं। and if weight of the baby is more than 1000 grams तो हम D5 लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, यू कैन राइट हियर D5 if weight is more than D5 if weight is less than 1000 grams। अगर वेट 1000 ग्राम से ज्यादा है तो हम D10 लगाते हैं, if weight is less than 1000 grams तो हम D5 लगाते हैं for 3-4 days। If gestational age of the baby born is 30 to 32 weeks and birth weight is 1200 to 1500 grams, then we go for orogastric and nasogastric feeds। इसमें क्या करते हैं, एक nasogastric ट्यूब को नाक से स्टमक तक डाला जाता है या फिर माउथ से स्टमक तक डाला जाता है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इफ जेस्टेशनल एज इज 32 to 34 वीक्स देन 1500 to 1800 grams of weight of the baby, then we go for spoon feed or cup feeding or palliative feeding। If gestational age is more than 34 weeks, that is about mature babies but still premature, and birth weight is more than 1800 grams, then we put the baby to breastfeed। and it is understood कि अगर mature baby है, प्रॉपर एक टर्म बेबी है तो वो हम ब्रेस्ट फीड पे ही डालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज जो है वो हम फीडिंग टेक्निक को असेस करते हैं कि कौन सी देनी है, राइट, जितना प्री मैच्योर है उतना हम पेरेंटल न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं, और मोर देन 34 वीक्स में आप ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस कर सकते हो। देन व्हाट आर द वेरियस मेथड्स नाउ ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। वन इज एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। अब जिन बच्चों को आप स्पून से पिला सकते हैं, राइट, अब सबको पता है दैट ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट फूड, राइट, ब्रेस्ट मिल्क जो है दैट इज बेस्ट फूड फॉर द बेबी, यू ऑल नो दिस, राइट। तो अब जो न्यूट्रिशन ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है वो किसी और मिल्क से नहीं मिल सकता, राइट। इतने सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इतने लाइक सेक्रेटरी IgA, फैट्स, प्रोटीन, सोडियम्स, तो ये सारी चीजें जो इसी से मिलती हैं। कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं मदर मिल्क में, अगर प्री मैच्योर मदर है तो उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं उसके मिल्क में, तो वो सारी जो नीड्स हैं, बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, वो कवर होती हैं विद द ब्रेस्ट मिल्क। तो कोशिश यही होती है कि ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस किया जाए, दैट इज मदर को बोला जाए ईदर विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, वो ब्रेस्ट मिल्क को किसी स्टेराइल ग्लास बॉल में, किसी कंटेनर में वो उसे निकाले ताकि उसे स्पून के साथ बच्चे को फीड कराया जा सके। इमीडिएटली आप उसको फीड करवा सकते हैं एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क को। तो दिस इज द बेस्ट मेथड फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन इज, अगर आपको लगता है ब्रेस्ट मिल्क इज इमेच्योर मिल्क, राइट, तो ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर्स देते हैं। ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर्स क्या होते हैं? दीज आर मिल्क बेस्ड मल्टी कॉम्पोनेंट सप्लीमेंट्स। मल्टी कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इसमें एनर्जी भी ज्यादा होती है, प्रोटीन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी ज्यादा होते हैं। इनको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क के साथ मिक्स किया जाता है ताकि जो बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उसको कंप्लीट किया जा सके, राइट, उसकी ग्रोथ में हेल्प हो सके। इसके लिए ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर्स डाले जाते हैं जो ह्यूमन मिल्क में ही डलते हैं। तो इफ वन एग्जांपल इज लैक्टोडेक्स HMF, राइट, लैक्टोडेक्स HMF, लैक्टोडेक्स ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर HMF, राइट, लैक्टोडेक्स ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर। ये जो है इसका 2 ग्राम का सेशे आता है। तो ये जो 2 ग्राम का सेशे है दैट वी हैव टू डिसॉल्व इन 50 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, राइट, मदर को एक्सप्रेस करने को बोलते हैं मिल्क को, और 2 ग्राम के सेशे को 50 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क में मिक्स किया जाता है, फिर उस ब्रेस्ट मिल्क को स्पून की हेल्प से पिलाया जाता है। और ये जो फोर्टिफिकेशन है, वी हैव टू रिमेंबर दिस इज स्टार्टेड आफ्टर 2 वीक्स ऑफ बर्थ।
इफ द इन्फेंट इज लेस देन 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, क्योंकि उन्हीं में हम स्पून फीड देते हैं, तो उनमें जो है जो फोर्टिफिकेशन है 2 वीक्स ऑफ बर्थ के बाद की जाती है। और दूसरी बात जो हमने ध्यान रखनी है कि जो फोर्टिफाइड एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क है, एक बार आपने इस एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क में ये फोर्टिफाइड डाल दिया, उसके बाद इस जो मिल्क को है आप स्टोर नहीं कर सकते फॉर लॉन्ग टाइम। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट हैज टू बी कंज्यूम्ड विद इन 2 to 4 hours। ठीक है, ये जो ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर के साथ मिक्स जो मिल्क होता है, इसको आपको 2 से 4 घंटे के अंदर यूज करना होता है। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम्स, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल इज लैक्टोडेक्स HMF। थर्ड इज फॉर्मूला मिल्क। फॉर्मूला मिल्क आप सबने सुना होगा है ना, लैक्टोजन देते हैं। मिल्क फॉर्मूला, तो मिल्क फॉर्मूला जनरली जो बनाए जाते हैं दे आर एज पर द प्री मैच्योर बेबीज एंड दे हैव टू बी गिवन 2 hourly। हर 2 घंटे के बाद फॉर्मूला मिल्क जो है बच्चे को दिया जाता है। तो दिस इज द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ ए फॉर्मूला मिल्क। इसमें प्रोटीन्स 2.0 grams per 100 ml होते हैं। दिस इज पर 100 ml, सॉरी, दिस इज ग्राम्स पर 100 ml, राइट। इसमें फैट्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, DHA होता है विच आर वेरी गुड फॉर नर्वस सिस्टम, देन कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। You can see osmolarity is 300 milliosmoles and renal solute load is very low, that is 100 milliosmoles per liter। और कैलोरीज जो है 80 किलो कैलोरीज पर 100 ml ये प्रोवाइड करता है बच्चे को। इसमें विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं एज पर RDA, तो ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा हमने देखना होता है कि इसको जो है इसकी जो रेशो है जो मदर मिल्क के साथ है, वे प्रोटीन केसिन रेशो, दैट इज 6:40। वे प्रोटीन होती है और केसिन होता है, राइट। वे प्रोटीन और केसिन रेशो है दैट इज मेंटेन्ड बिटवीन 16:40। इसमें वे प्रोटीन होती है और जो वैसे मिल्क होता है उसमें केसिन होता है। तो इसमें जो रेशो है वो 60:40 रखी जाती है, क्लोज टू मदर मिल्क रखी जाती है। देन इज गैवेज फीडिंग। व्हाट इज गैवेज फीडिंग? गैवेज फीडिंग में 2-3 चीजों का आपको पता होना चाहिए। गैवेज फीडिंग होती है जो हम नाक से स्टमक में डायरेक्टली डाल देते हैं फीड को, ठीक है। इसमें क्या है, एक NG ट्यूब यूज की जाती है। क्या ट्यूब की जाती है? NG ट्यूब। NG दैट इज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की जाती है यूज, और बेसिकली जो हम नंबर यूज करते हैं दैट इज 06 FR। 06 नंबर यूज करते हैं इसमें। और इसका जो बहुत सारे नंबर की NG ट्यूब्स आती हैं अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द बेबीज, उनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल न्यू बॉर्न है उसमें ये लाइट ग्रीन कलर की जो जिसका ये पॉइंट होता है वही NG ट्यूब यूज करते हैं, और इसका नंबर होता है 06 FR। अगर ये ब्लू कलर की है ना, ये जो कनेक्टर है दैट इज ऑफ ब्लू कलर, तो दैट इज इट इज ऑफ 08 FR, राइट। तो इस 08 FR को आप 5 years तक के बच्चों में यूज कर सकते हैं। 5 years तक के बच्चों में इफ इट इज ब्लैक देन इट इज 10 FR। इफ इट इज वाइट देन इट इज 12 FR, राइट। वाइट है तो 12 FR है, ये याद रखना है आपने। वाइट है देन इट इज 12 FR, right? If it is green, dark green, then it is 14 number, right? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इतने FRs की जो है वो यूज होते हैं कैनोलास। दिस इज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, दैट इज NG ट्यूब। और इसको डालने की टेक्निक होती है, फर्स्ट यू हैव टू, इसमें एक स्टैंडर्ड पॉइंट मेंशन होता है, यहाँ तक हमें डालना चाहिए। एक आइडियल साइज है कि कितना आप अंदर इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसकी जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं हम एज पर बेबीज। यहाँ पे हम नेजल, यहाँ से एलर नेजाई से ट्रेगस ऑफ द ईयर तक, और यहाँ से इस ट्यूब को रखते हैं NG ट्यूब को, और यहाँ से मिड ऑफ द ज़ीफॉइड प्रोसेस इन द अम्बलाइकस, यहाँ तक। इतनी लेंथ को फिर हम मार्क कर लेते हैं कि कितनी लेंथ आई है, फिर उसको हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं नोज से। सो दिस लेंथ ऑफ द पॉलीइथाइल नेजोगैस्ट्रिक कैथेटर, इट शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल नेरीज टू द लोब ऑफ द ईयर, और फ्रॉम लोब ऑफ द ईयर टू द एंसिफॉर्म कार्टिलेज। वहां तक हम इसको मेजर करते हैं ताकि इसकी प्रॉपर लेंथ है। और जब इसको इंसर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें हम हेड ऑफ द बेबी है उसको थोड़ा सा उठा के नीचे को एक्सटेंड करते हैं उसकी नेक को, और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को स्लोली जेंटली नोज से डाउनवर्ड पास करते हैं टू द इसोफेगस इन द स्टमक। द आउटर एंड ऑफ द ट्यूब इज अटैच्ड टू अ and this outer end of the tube is attached to a 20 ml of syringe। यहाँ पे हम 20 ml की एक syringe अटैच कर देते हैं।
अब हमें क्या पता वो स्टमक में गई है कि लंग्स में गई है, क्योंकि ट्रैकिया भी साथ में है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, बेबी एक बार 20 ml की सिरिंज अटैच कर दी, उसके बाद हम उसमें 2 to 5 ml तक एयर को पुश करते हैं और साइमल्टेनियसली हम स्टमक के लेवल पर स्टैथ रखते हैं। और अगर गर्गलिंग साउंड आती है एयर की, इट मीन्स इट इज इन द स्टमक, एंड इफ देयर इज राइज इन द चेस्ट देन इट मीन्स इट इज इन द ट्रेकिया। तो पहले आपको पता करना है स्टमक में गई भी है कि नहीं। तो एक बार स्टमक में चली गई देन यू कैन फीड द बेबी। तो उसमें क्या करते हैं कि इस ट्यूब के साथ ऐसे 20 ml की सिरिंज हमने अटैच की है, राइट, और इसमें फीड को डाल देते हैं और ये जो फीड है अंडर द ग्रेविटी इसको फॉल करने देते हैं बेबी के स्टमक में, जितनी आपने फीड देनी है 10 ml 15 ml, है ना। एंड हियर आल्सो देयर इज अ पिक्चर शोइंग पाथवे इनसाइड द बॉडी ऑफ द बेबी। जैसे हमने नॉस्ट्रल से डाला इसको, ये फिक्स कर दिया बाहर ताकि ये खिसके ना, है ना, बाहर ना निकले, और नेरिस से स्टमक में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। वैसे ही होती है नेसोजेजुनल फीड, राइट, इसमें डायरेक्टली हम जेजुनम तक इसको डाल देते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को, पर वो अंडर वेट डाली जाती है। और इसको चेक करने के लिए कि जेजुनम में गई भी है कि नहीं, उसके लिए एस्पिरेशन निकालते हैं और उसकी पीएच चेक की जाती है कि कितनी पीएच है। देन इज इम्पॉर्टेंट इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है कब देते हैं, जब बहुत सारा प्रीमेच्योर बेबी है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और एक्सट्रीमली सिक बेबी है, और उनमें ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं TPN, दैट इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, एंड इट इज कंसिडर्ड द highly expensive and high incidence of side effects and complications are related to this technique. But yes, it is very satisfactory technique for the treatment of the baby or for providing proper nutrition. There are various indications and contraindications. Basically you should know at least contraindications कि किन में हमें TPN नहीं देनी है, total parenteral nutrition, that is हमें बच्चे को कैनुला के थ्रू फ्लूइड नहीं देना है। वन इज हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की कंडीशन में एक तो हमें नहीं देना है, दूसरा इज एसिडीमिया, शॉक, हाइपर बिलिरुबिनीमिया है तो हमें पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं देनी है बच्चे को, एजोटीमिया में नहीं देना है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में नहीं देना, बिकॉज इट कैन लीड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और देना कब है, जब बच्चा वेरी लो बर्थ वेट है उनमें देना है, या सिक है, या उसका डायरिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, एनॉमलीज हैं कि वो फीड नहीं कर सकता, या फिर गैवेज फीडिंग से भी उसको प्रॉपर वेट गेन नहीं हो रहा है, तो उन कंडीशंस में हम TPN स्टार्ट कर सकते हैं। देन इज अवेलेबल पेरेंटल सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, एज यू नो ग्लूकोज देना होता है, प्रोटीन देना होता है, लिपिड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब देते हैं हम। तो कैसे देते हैं, हम बोलते हैं D5 लगा दिया, D10 लगा दिया, राइट। सो जो D5 D10 है, दीज आर डेक्सट्रोज, ग्लूकोज होता है बेसिकली, तो ये डेक्सट्रोज है ना, डेक्सट्रोज फॉर्म में। ये D5 D10 D25 D50 अकॉर्डिंग टू द नीड, जो हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। प्रोटीन्स की इंजेक्शन आते हैं, अमीनोवेन, प्राइमीन, 6% 10% अकॉर्डिंग टू नीड इनको यूज करते हैं। इंट्रालिपिड इमल्शंस आती हैं, इंजेक्शन आते हैं, इसके भी इनको भी अकॉर्डिंग टू नीड यूज किया जाता है। देन NS, जो बोलते हैं NS लगाना है, राइट, NS दैट इज NaCl, तो ये 0.9% जनरली जो हम यूज करते हैं, दैट इज 0.9% NaCl, राइट। देन पोटेशियम क्लोराइड, RL में पोटेशियम क्लोराइड होता है, 15% होता है उसमें। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% इंजेक्शन आते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन आता है 50% इसमें रहता है। तो ये कुछ पेरेंटल सॉल्यूशन जो इंडिया में अवेलेबल हैं विद दीज नेम्स, राइट। देन इज व्हाट आर द recommendations for administration of nutrient solutions for parental nutrition। क्या recommendations हैं, पहले तो याद रखना है कि 7 दिन तक there is fixed fluid pattern। If birth weight is less than 1500 grams, then the fluid is 80 ml per kg per day, and this is per kg per day, per kg per day, right, per kg per day के हिसाब से देना है। And if birth weight is more than 1500 grams, तो day 1 पे हमने 60 ml per kg per day देना है, and it is increasing with 15 ml के साथ ही increase करता जाता है, और on the 7th day it is almost 150 ml जो हमें देना होता है for at least 7 days, एक वीक तक के लिए जो मैक्सिमम है दैट इज 150 ml पर डे, पर केजी पर डे। तो इंक्रीज करता है 10 से 20 ml पर डे की रेंज में आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बोथ फॉर 1500 grams बेबी एंड मोर देन 1500 grams बेबी, राइट।
देन ग्लूकोज जो है वो दिया जाता है 6 mg पर kg पर मिनट की स्पीड से ऑन डे 1, और इसको हम 2 mg पर kg पर मिनट की स्पीड से इंक्रीज करते हैं जब तक जो वैल्यू है वो 12 mg पर kg पर मिनट तक नहीं पहुंच जाती. दिस इज मिनट्स टू मेंटेन यूग्लाइसीमिया. बट अगर आपको लगता है कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा है इवन एट द लेवल ऑफ 6 mg पर kg पर ml, देन यू कैन गिव इंसुलिन इंजेक्शंस, राइट. देन प्रोटीन्स जो है उसका इन्फ्यूजन दिया जाता है एट द रेट ऑफ 1.5 grams per kg per day, and it is also increased with the speed of 0.5 to 1 gram. 0.5 से 1 ग्राम की स्पीड के साथ इसको इंक्रीज किया जाता है टिल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3.5 ग्राम्स पर केजी पर डे. ये मैक्सिमम वैल्यू है प्रोटीन के लिए. ठीक है, इसके बाद इंक्रीज नहीं करते हैं. एंड ग्लूकोज और अमीनो एसिड सोल्यूशन इनको हम मिक्स करके भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग देना है, सेम स्ट्रेंथ से दे सकते हैं ग्लूकोज और प्रोटीन्स को. अब जो फैट्स हैं इनको भी जो है 1 ग्राम पर केजी पर डे की स्पीड से दिया जाता है, और जो इनकी स्पीड है इंक्रीज की दैट इज ऑल्सो 0.5 grams per kg per day to 1 gram per kg per day, right. और जो maximum है that is again 3 grams per kg per day. This is the maximum dose for fat administration, and this has to be given with the separate syringe, right. इसको हम मिक्स करके नहीं देते हैं. वैसे ही मिनरल और ट्रेस एलिमेंट्स हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको भी दिया जा सकता है. वाइटामिन्स को हैं उनको फैट इमल्शंस के साथ मिक्स करके दिया जा सकता है वाइटामिन्स को. देन व्हाट आर द पैरामीटर्स. अब प्रॉपर न्यूट्रिशन हो रही है कि नहीं उसके लिए हमें क्या चेक करना होता है. पैरामीटर्स हैं लाइक वेट, एंथ्रोपोमेट्री चेक कर लो आप, वेट चेक कर सकते हैं. डेली वेट चेक करना है. वेट जब भी चेक करना है कब करना है, डेली, एवरी डे, राइट. एवरी डे चेक करना है, डेली. एंड लेंथ एंड हेड सर्कमफ्रेंस, दिस हैज टू बी चेक्ड वीकली. इसको वीकली चेक करना है कि प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चे की. देन यूरिन ग्लूकोज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन. यूरिन में ग्लूकोज कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये हम एवरी फर्स्ट वीक में चेक करते हैं. फर्स्ट वीक में तो हम हर यूरिन सैंपल में देखते हैं कि कैसी है. फर्स्ट वीक में एवरी यूरिन सैंपल, 1 वीक में एवरी यूरिन सैंपल में देखा जाता है. और जो ब्लड ग्लूकोज है ये इनिशियली 6 आवर्स पे देखा जाता है, फिर आप इसको 12 आवरली ब्लड ग्लूकोज लेवल देख सकते हैं. एक बार स्टैटिक रेट आ जाता है देन यू कैन गो फॉर 12 आवरली. सीरम सोडियम पोटेशियम, दिस हैज टू बी चेक्ड डेली फॉर 3-4 डेज. तो हम इसको डेली चेक करते हैं सीरम पोटेशियम लेवल को, राइट. और उसके बाद आप इसको वीक में 2 बार चेक कर सकते हो. वैसे हमने 3-4 दिन डेली चेक करना है, फिर वीक में 2 बार चेक कर सकते हो. देन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन चेक करना है, डेली करते हैं फॉर 3-4 डेज. देन वीकली आप इसको ट्वाइस वीकली कर सकते हैं. ब्लड पीएच डेली चेक करनी है, देन आप वीकली ट्वाइस कर सकते हो. हीमोग्राम आपने वीकली चेक करना है. ब्लड हीमोग्राम जो है दिस हैज टू बी चेक्ड वीकली. एंड सीरम कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड LFTs, दिस हैज टू बी चेक्ड वीकली. ये भी वीकली चेक करते हैं हम, ठीक है. तो ये पैरामीटर्स हम असेस करते हैं अगर पेरेंटल न्यूट्रिशन में बेबी है. देर आर वेरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ TPN, लाइक जहाँ पे कैनुला लगा है बच्चे को, जहाँ से फ्लूइड जा रहा है वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, राइट. लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, स्किन जो है वहाँ की इरोजन हो सकती है. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है फॉर लॉन्ग टाइम्स. हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है अगर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज हैं, डिहाइड्रेशन में जाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस रहती हैं जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है. देन डिस्निया हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, साइनोसिस है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन रहती है समटाइम्स, ये भी देखा गया है. रैपिड इन्फ्यूजन देंगे आप अगर लिपिड्स का रैपिड इन्फ्यूजन दे दिया तो इट कैन लीड टू दिस डिस्नी एंड साइनोसिस. तो देयर आर वेरियस कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू TPN. So this is all for today regarding the techniques of breastfeeding and what are the various methods that we use for feeding babies in hospitals. Next lecture will be on the natural method of feeding, that is breast milk, and what are the modern methods to provide breast milk to the baby. Both Ayurvedic and modern aspect we will discuss in our coming video. Till then, take care.